कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year, we met on the we are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchanged our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. As you saw yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion US. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us a concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements.
The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We've established resilient channels of credit, financial, and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network, and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example, in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia or Belarus. मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? Start your journey with your personal trading advisor and master the market. Open Demat account with Motilal Oswal and get access to Star Advisory portfolio, ready-made option strategy, expert curated basket, Structure, including its main artery, the Northern Sea Route. There are many other sectors of the economy where Russia and India have garnered positive experience. We are conducting joint initiatives in industry, machine manufacturing, digital technologies, space exploration, and other science-intensive avenues. For example, in accordance with the commercial agreement signed during the visit, there will be a large Russian-Indian pharmaceutical factory built in the Kaluga region in Russia. We will be starting the production of high-quality anti-tumor medicinal drugs using the advanced Indian technology. In their turn, the Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the ongoing Business Forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of a multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history, and spiritual values of each other. Scientific and educational contacts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From year to year, we see the increase in tourist flows. Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we have confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with the like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community.
As state parties, state founders of the BRICS, Russia and India have done a lot of things, and continue to do more to increase the authority of the organization. As you know, next year India will assume the chairship, and the BRICS will provide all necessary assistance to our Indian friends in the work on the relevant BRICS agenda. I would like to point out Russia and India are traditionally closely cooperating in the military technical sphere. Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We're also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your attention. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मोदी से ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान आप सुन रहे थे। हम भारत को बिना रोक टोक के तेल देंगे। पुतिन ने कहा भारत से दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। मोदी से ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। हम भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। आप सोचिए, ये जो बयान है, ये बयान सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लगातार जिस तरह से अमेरिका भारत पर टेरिफ वॉर छेड़ रहा था, भारत पर दबाव बना रहा था, उस दिशा की तरफ भी आप जरा गौर करिए। ये भारत के समर्थन में दिया गया बड़ा स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं बढ़ा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, सखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापमवाप्यसि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इंडिया टीवी पर वक्त हो गया है राजधर्म का। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को नीति और सिद्धांत समझाते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जय और पराजय को समान भाव से समझो। कर्म को केवल कर्तव्य निष्ठ होकर करो। और आज हैदराबाद हाउस में दुनिया की दो बड़ी शक्तियां जब साथ थी, मोदी ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत रूस का सबसे सच्चा मित्र है। ऐसा मित्र जो कठिन परिस्थितियों में साथ भी खड़ा होता है और विश्व शांति और कल्याण के लिए यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का सकारात्मक प्रयास भी करता है। हैदराबाद हाउस में पुतिन ने मोदी से यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा, भारत और रूस की विकास और विश्वास की इस ताकत से दुश्मनों को क्या संदेश मिला, और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी और पुतिन के बीच कौन कौन सी डील सील हुई, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन जंग पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध रोकने के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने में भारत पूरी मदद करेगा। मोदी ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया, कहा कि आतंकवाद मानवता पर सीधा हमला है, इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। वहीं अमेरिका के दबाव के बीच पुतिन ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस भारत को बिना रोक टोक के तेल बेचना जारी रखेगा। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण
और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। पुतिन और मोदी की हैदराबाद हाउस में अहम बैठक के बाद मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भारत की मदद करेंगे, जो पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है। कुरुक्षेत्र में पुतिन, पीएम मोदी का गीता ज्ञान। यूक्रेन में भीषण युद्ध, ज़ेलेंस्की को खुली धमकी। यूक्रेन पर बारूदी बवंडर, क्या ज़ेलेंस्की करेंगे सरेंडर? दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कौन कौन सी डील फाइनल हुई? क्या S-400 के बाद S-500 के सौदे पर मुहर लगी? क्या ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन पर बात पक्की हुई? क्या भारत को मिलने वाला है स्टील्थ फाइटर Su-57? क्या रूस देगा भारत को परमाणु पनडुब्बी? न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर क्या समझौता हुआ? तेल खरीद समेत दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर पर क्या डील हुई? हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन की ये तस्वीरें नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की ये बॉन्डिंग दुश्मनों के दिल से धुआं निकालने वाली है। दिल्ली में जिस गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत हुआ, वो बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा होगा। हैदराबाद हाउस में आज जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने बैठे तो पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप Sahi, options and stock trading. Try it now. ये जो 2001 में अपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। मोदी ने पुतिन के सामने विश्व को क्लियर कट मैसेज दे दिया। भारत विश्व का कल्याण चाहता है, भारत तटस्थ नहीं है, उसका सिर्फ एक ही पक्ष है, वो है शांति। एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण
शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मोदी की युद्ध नीति बिल्कुल साफ है, आखिरी वक्त तक शांति की कोशिश, नहीं माने तो युद्ध, और इस बात से पुतिन भी इत्तेफाक रखते हैं। За вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же и за вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас были details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. Очень большое личное внимание. We really appreciate that and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच कौन कौन सी डिफेंस डील पक्की हुई, इस पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच $2 अरब यानी करीब 16,700 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर सबमरीन डील पर भी बात बन सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के $5 अरब का सौदा पहले ही हो चुका है, जिसकी 3 रेजिमेंट भारत को मिल भी चुकी है। लेकिन अब भारत S-400 के कुछ और रेजिमेंट्स रूस से खरीद सकता है। ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इसी साल मई के महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर आसमान में ही मार गिराया था। हैदराबाद हाउस में कितने रक्षा समझौतों पर बात बनी, पाकिस्तान ये सोच सोच कर पैनिक में है। पाकिस्तान में पैनिक रूस के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर भी है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये S-400 से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत की पूरी कोशिश S-400 के बाद S-500 को लाने की है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ाने वाली भारत की विध्वंसकारी ब्रह्मोस मिसाइल है। पाकिस्तान अभी तक ब्रह्मोस की मार को भूल नहीं पाया है। इधर भारत ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हैदराबाद हाउस में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस को लेकर क्या डील हुई, बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा। भारत की नजर रूस के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट पर भी है। पुतिन के साथ आज की मीटिंग में रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बनाया है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इसे तकरीबन अदृश्य बनाती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच $2 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन पर डील तकरीबन फाइनल हो गई है। इस डील पर पिछले 10 साल से काम चल रहा था और अब खबर है कि भारत को अगले 2 साल में अपनी नई परमाणु पनडुब्बी मिल सकती है। ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी होगी, जिसे 10 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। भारत और पुतिन के बीच हो रही डिफेंस डील दोनों देशों के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी साबित हो सकती है। खासतौर से पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन सकती है। रूस इसरो को अपना सबसे पावरफुल सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन RD-191M की 100% टेक्नोलॉजी दे सकता है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष प्रोग्राम में बहुत मददगार साबित होगी। इसरो इस नई तकनीक का इस्तेमाल अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 में करेगा। RD-191M इंजन लगने के बाद GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन हो जाएगा। एक बार में 2.5 से 3 टन से ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जाया जा सकेगा। इससे भारी गगनयान को आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के आंखें तरेरने के बावजूद पुतिन का नई दिल्ली आना, मोदी से मिलना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। पुतिन की इस एक विजिट ने मोदी की तरफ से पुतिन को दिए गए ग्रैंड वेलकम ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, अमेरिका जैसे देशों के दबाव में नहीं आएगा। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट्स देखी। ये बात तो तय है कि भारत किसी के दबाव में ना पहले आया था ना अब आएगा, और भारत के साथ ये प्रगाढ़ रिश्ते भी इसी बात का संदेश देते हैं। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ सीनियर रशियन टीवी जर्नलिस्ट मिस क्लेरा हैं, बहुत स्वागत आपका। मिस सानिया झा हमारे साथ सीनियर रशियन टीवी जर्नलिस्ट, मैम आपका भी बहुत स्वागत। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे, और साथ ही प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आप प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के, बहुत स्वागत सर आपका भी। आज ये जो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी हैं प्रोफेसर अमिताभ जी, आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी रही कि पहले तो कल एक गर्मजोशी दिखाई दी थी, आज रिश्तों में उसका एक्सटेंशन दिखाई दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, गर्मजोशी पहले भी थी और ये गर्मजोशी और एक्सटेंड हुई, आपने सही कहा, और स्ट्रेंथ के साथ हमने ये उनसे वार्ताएं की हैं। राष्ट्रपति पुतिन आए, 4 साल बाद आए, 23वीं मीटिंग हो रही है भारत के साथ शिखर सम्मेलन में, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो स्ट्रेंथ जो रूस इस समय दिखा रहा है दुनिया को, और जो भारत दिखा रहा है एज अ ग्लोबल साउथ लीडर, हम उसका एहतराम करते हैं। और साथ साथ ये भी हम दुनिया को और एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। अगर आपको मिलना ही है, अगर आपको भिड़ना ही है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज मीटिंग हुई, आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया उसको, उसमें एक बात तो बहुत क्लियर कर दिया कि शांति ही सारी समस्याओं के मूल पर है। अगर हम शांति रखेंगे पूरी दुनिया में तो वो जरूरी होगा। खासकर भारत और रूस के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में हम शांति की पहल करें। भारत पहले से भी बोलता है और अभी बोलता आया है। रही भारत और रूस के आपसी संबंधों की, तो वो हमने देखा कि एक नए शिखर को अब वो छूता दिख रहा है, क्योंकि अब तक जो हमारी डिपेंडेंस थी पिछले 3 साल में, जब से युद्ध शुरू हुआ है 3-3.5 साल में, तब तक तेल की ही थी। अब हमने नए अग्रीमेंट साइन किए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट मैं ये मानता हूं कि, और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जिक्र किया कि हम उनसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, या यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो एक एस्टैब्लिश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसके साथ भी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक मील का पत्थर होगा, न कि सिर्फ भारत रूस संबंधों के लिए, बल्कि जो ट्रंप के टैरिफ के बाद जो भारत की का निर्यात थोड़ा गड़बड़ाया है, उसको संभालने के लिए भी बहुत तेल पर अगर हम बात करें तो जो आज राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बेरोक टोक बिना किसी पाबंदी के तेल भारत को वो देंगे। मिस क्लेरा, आज जिस तरीके की चर्चा हुई है दोनों देशों के बीच में $100 मिलियन तक का व्यापार बढ़ाने की बात हुई है, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई है, उससे ऊपर जब युद्ध की भी नीति की बात हुई तो वहां पर भी भारत शांति का संदेश पुतिन तक पहुंचाने में क्या कामयाब रहा है? देखो जी, जो अभी चलता है यूक्रेन रूस में,
वो रूस में कोई गलती नहीं है। वो अपना नागरिक को जो डनबास में रहते थे उसको शांति होना चाहिए। इसलिए जो अभी बताया इन स्पीच राष्ट्रपति पुतिन जो बताया कि उसको क्या चाहिए, अभी शांति चाहिए। हम लोग दोनों साथ ढूंढ रहा है पुतिन आए हैं, पुतिन आए हैं, पुतिन आए हैं। उनके साथ वो जो 7 मिनिस्टर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो कॉफी पीने आए हैं? नो, दे मीन बिजनेस। अगर चेयरमैन सेंट्रल बैंक आई हुई है, वो क्यों आई हुई है? कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज हो रही है। हमारे बीच में पैसों का लेन देन का जो डिफरेंसेस है उसको ब्रिज करना है। 60,000 करोड़ रुपया हमारा इंडियन बैंक्स में पड़ा है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके तरीके निकालने हैं। हम अपने रुपए को उनके साथ डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा उनका फार्मा के साथ हमारा उनका बड़ा अच्छा ट्रेड सप्लाई है, लेकिन हमारा गारमेंट्स में नहीं है, हमारा मशीन्स में नहीं है, हमारा बाकी जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें नहीं है। ये जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर आए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, किस लिए आए हैं? और बाय द वे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मत देखिए कि 20-25 एग्रीमेंट हुए हैं। जो एग्रीमेंट नहीं हुए, जिनकी बात चली है, वो दूर तलक जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट्स रातों रात नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको आगे ले जाना है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे कि 2030 तक का एक खाका तैयार करना है। 2030 तक के लिए मिस सानिया, ये भारत और रूस दोनों एक साथ कोलैबोरेटेड एफर्ट डालना चाहता है। एक ऐसा आर्थिक फ्रंट पर विकसित भारत, विकसित अगर ये कहें रिश्तों को हम देखें तो वो वहां तक सोच रख रहा है। ये 5 साल का अगर हम ये कहें कि बायलैटरल टॉक के फिर अलग अलग फिर आयाम आते जुड़ते चले जाएंगे। हाँ जी, नमस्कार। मैं बोलना चाहती हूँ, आप पहले देख लीजिएगा कैसा था दोस्ती तो पुराना है, मतलब था, इतना साल पहले था। हिंदी गाना हम लोग जानते हैं, है ना? हिंदी रूसी भाई भाई कौन गा रहा था, फेमस एक्टर। तो फिर आगे हम लोग भी ऐसे सोचते हैं ना, आगे भी अच्छा होगा, आगे भी दोस्ती बढ़ जाएगा, रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अच्छा मैम, हमें ये तो पता है कि भारत इस दोस्ती को कैसे देख रहा है, इंडियन मीडिया इस दोस्ती को कैसे रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आन्या जी ये बताएं कि रूस इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है? वहां की खबरों में क्या सुर्खियां बन रही हैं? वहां के चैनल्स क्या डिस्कस कर रहे हैं? देख लीजिएगा, दोस्त हमेशा पता चलता है जब आपके पास कोई परेशानी आया। जैसा रशिया यूक्रेन के साथ हो गया प्रॉब्लम, तो कौन साथ में रहा? भारत, हिंदुस्तान दिखा दिया वो साथ में है। तो ये बातें भूल नहीं जाते इतना जल्दी से। जो आपका अपना हाथ बढ़ा दिया, आपका मिल गया अच्छा रिश्ता, जो आपका सपोर्ट, तो ये फिर रशिया भूलने वाले नहीं है। पुरानी दोस्ती है। और हिंदी रूसी भाई भाई का जो नारा, जी आप कुछ ऐड करना? पुरानी दोस्ती क्यों है, नई दोस्ती है। आन्या हिंदी बोल रही है, क्लैरा हिंदी बोल रही है। और मैं आपको एक दोस्ती, ये जो बात कर रहे हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 2030 की। आन्या इज नॉट क्लैरा, इज नॉट क्लैरा, क्लैरा सिंह, आन्या झा। आन्या झा। वी आर ऑलरेडी टुगेदर, वी आर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड। जो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी, कैसे एक जैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। मत ढूंढिए कि पुतिन अपने आप में ये मेरे रिलेशन है, ये दोनों मेरी रिलेटिव हैं। आज के बाद रशिया का हर बाशिंदा मेरे लिए एक रिलेटिव है। हम अगर इस तरह देखेंगे तब बात बनेगी। मुझे जरूरत नहीं है कि कोई एक एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट मेरे फेवर में हो।
उनके फेवर में भी, कोई किसी पर एहसान नहीं है। लेकिन ये तो हम उस चश्मे से हमें देखना होगा प्रोफेसर साहब। मैं तो देखती हूं कम से कम, और मैं ये देखती हूं कि जब एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो उसमें भारत का फायदा कितना है, मुझे उस नजर से भी देखना होगा, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि भारत ट्रेड डेफिसिट में है। क्या आज की ये मुलाकात, ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर रहे हैं? देखिए, भारत और रूस का व्यापार जो है वो हाईली इन फेवर ऑफ रशिया है, ये हम मानते हैं। और पिछले 3-3.5 साल में जब से हम उनसे तेल खरीदने लगे हैं, वो इम्बैलेंस जो है वो और बढ़ गया है। अभी हम करीब मतलब मार्च 2025 का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो करीब हम $65 बिलियन के नेगेटिव बैलेंस में हैं। तो उसकी भरपाई करनी होगी, और तेल का डिमांड जो है वो भारत में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जिस तरह से रोजनेफ्ट और लुकोइल पे सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने, उसको देखकर रूसी तेल का इस समय डिमांड घटता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत और बांग्लादेश का व्यापार, यानी भारत बांग्लादेश को $12 बिलियन के करीब का सामान बेचता है। हम रूस को सिर्फ $5 बिलियन का सामान बेच सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं फ्लॉट, तो रूस कोई बांग्लादेश से छोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है। उसके भी रिक्वायरमेंट जो बांग्लादेश के हैं या जो भारत के रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं होंगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो एक गैप है जो फोकस जो हमारा ट्रेड का है, शायद उस गैप को एड्रेस नहीं कर रहा है। उनको भी कपड़े चाहिए, उनको भी जूते चाहिए, उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, रोबोटिक्स चाहिए, सर्विस सेक्टर चाहिए, जो हम दे सकते हैं और जो हम विश्व में अब अन्य देशों को दे रहे हैं। उनको भी लेबर चाहिए, और लेबर मोबिलिटी पैक्ट इस बार हुआ है कि कम से कम ब्लू कॉलर वर्कर वहां जाएंगे, क्योंकि उनके लोग कम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस की जनसंख्या घटती जा रही है। 2050 आते आते तक रूस की जो वर्तमान जनसंख्या उससे भी कम हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उनको लेबर का प्रॉब्लम होगा, लेबर शॉर्टेजेस होंगी। तो हमने वो मोबिलिटी पैक्ट भी किया उनके साथ, और जो आपने कहा डेफिसिट बैलेंस है उसको कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत पूरे विश्व में $1025 बिलियन का ट्रेड करता है, और लगभग $1025 इंपोर्ट करता है, $875 हम एक्सपोर्ट करते हैं बिलियन US, यानी कहीं ना कहीं $150 बिलियन का अभी भी ट्रेड डेफिसिट पूरे विश्व के साथ भारत का है। लेकिन भारत का ट्रेड रूस के साथ सिर्फ 1.2% है। रूस का ट्रेड भारत के साथ उनके टोटल ट्रेडिंग का, एक्सपोर्ट का 1.7% है। तो इस गैप को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा, और 2030 का जो विजन डॉक्यूमेंट अब बना है कि हम $100 बिलियन का उनको या व्यापार करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। और उसी के दरमियान हम तो सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन देख रहे हैं। 7 मिनिस्टर आए, राष्ट्रपति पुतिन आए, रोजाटोम के चीफ आए, उनकी सेंट्रल बैंक की गवर्नर आई, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि 700 उनके व्यापारी भी अभी भारत मंडपम में हैं। 800 हमारे व्यापारी हैं, वो भी तो वहां मिलेंगे। 3:40 पर ये एक मुलाकात भी होनी है। हाँ, ये डिस्कशन भी होना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब दो देश साथ साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही देशों का विकास होता है। हाँ, इस दौर में हो सकता है कभी कोई थोड़ा आगे होगा, कोई थोड़ा पीछे होगा। ना प्यार के धोखे दिन्ने यारी दे विच जहान ते तैवार के खोखे दिन्ने हो सकता है सारी तैयारी और सारी मेहनत ही इसी बात की है। श्रीमद् भगवत गीता ये अहिंसक साधनों पर भी विश्व को वहां उस सोच तक लेकर आती है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब कल पुतिन से मिले थे तब उन्होंने ये गीता उन्हें जो रशियन भाषा में ट्रांसलेटेड थी वो गिफ्ट की थी। अब ये एक ऐसी पुस्तक है, इसके श्लोक ऐसे हैं जो संवाद, समझ और शांति और इसके महत्व पर जोर देती हैं। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तद एवतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। यानी कि एक महान व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य का सामान्य लोग अनुसरण करते हैं, यानी कॉमनर्स उसका पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, और कार्य ऐसा हो जो एक मानक स्थापित करे जिससे कि विश्व उसका अनुकरण करे। अब सोचिए जरा, इस वक्त रूस युद्ध क्षेत्र में है, अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों का दबाव इस वक्त रूस पर है
इस युद्ध को खत्म करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भगवत गीता को तोहफे में देने और अपने एक बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में है, विश्व जल्दी चिंता मुक्त होगा, इससे सीधा इंडिकेशन मोदी देते हैं कि यदि पुतिन भी शांति और कूटनीति का मार्ग चुनते हैं जैसा गीता कहती है, तो विश्व भी उनका अनुसरण करेगा। कुरुक्षेत्र में पुतिन, पीएम मोदी का गीता ज्ञान। यूक्रेन में भीषण युद्ध, जेलेंस्की को खुली धमकी। यूक्रेन पर बारूदी बवंडर, क्या जेलेंस्की करेंगे सरेंडर? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गीता गिफ्ट करके खास मैसेज देने की कोशिश की है। इस जंग में रूस अकेले यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो यूक्रेन के साथ नाटो समेत पूरे यूरोपीय देश। टिकट 500 रुपए और कन्वीनियंस फी 55 रुपए। ये एक्स्ट्रा चार्जेस तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट आपको आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा कमीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रो पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट पे 0% कमीशन है। मतलब जो इन्वेस्ट करो वो पूरा तुम्हारे लिए काम करेगा। पुतिन के दौरे के बीच पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। नाटो समेत यूरोपीय देश भी भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। यूरोप को लगता है कि मोदी ही इस जंग को रुकवा सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही संवाद और कूटनीतिक तरीके से जंग खत्म करने की बात कहते रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच ये विनाशकारी जंग करीब 1368 दिनों से चल रही है, जिसमें दोनों ही देशों में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, जिससे यूक्रेन में शहर के शहर धुआं हो रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की है, जहां बारूदी बवंडर से पूरा इलाका दहल गया। पूर्वी यूक्रेन का यह इलाका बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया है। मिसाइल और तोपों की बारिश हो रही है। रूस की आर्म्ड बटालियन यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। शक्तिशाली बम के हमले में इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। चारों तरफ अब सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने बीते 48 घंटे में 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन के परिवहन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान का दावा किया है। इसके साथ ही रूसी हमले से लॉन्ग रेंज ड्रोन वर्कशॉप भी तबाह हो गई। इन्हीं होम मेड ड्रोन से यूक्रेन ने पिछले दिनों काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया था। बीच समंदर में ही रूस के 2 टैंकरों को ध्वस्त कर दिया था। जंग के बीच रूसी सेना का यूक्रेन फतेह जारी है। रूस का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना अपना कंट्रोल करती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर जेलेंस्की को खुली चेतावनी दी है। यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना वापस बुलाए, वरना मॉस्को इस पर कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के तरीके पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के करीब 80% हिस्से पर रूस ने अपना नियंत्रण बना रखा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी सेना का कब्जा है और यहां से
यूक्रेन के एनर्जी सेंटर्स समेत अहम ठिकानों पर विध्वंसक अटैक कर रही है। तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर की हैं। पूरे इलाके पर भारी शेलिंग हो रही है और सेना के जवान दनादन गोले बरसा रहे हैं। आसमान से बरसते बमबारी से इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। पूरा इलाका वीरान हो गया है। बमबारी से कई इमारतों का बड़ा हिस्सा ढह गया है। चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। जंगी घमासान के बीच पूरा इलाका दहल रहा है। बम और तोपों के गोले से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। इस बीच सेना के जवान इलाके पर कब्जा करने के लिए हथियारों के साथ उतर चुके हैं। दोनों ही देशों के जवान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही नहीं, ऊर्जा के ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने खेरसॉन में जोरदार अटैक किया, जिसकी चपेट में यूक्रेन का एक पावर प्लांट भी आया है। धमाके से पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने दक्षिणी ओडेसा में भी यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक तरफा हो गई है और यूक्रेन को केवल झटके ही झटके लग रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर जोरदार अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के एजोव पोर्ट को धुआं धुआं कर दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण रूस के स्टावरोपोल इलाके में बड़े केमिकल प्लांट पर भी हमले का दावा किया है। आर पार की इस जंग में रूस यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है। पूर्वी यूक्रेन के साथ ही रूस की सेना उत्तरी पश्चिमी इलाके पर भी हमले कर रही है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन का लटस्क शहर है, जहां रूस मिसाइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आसमान से गिरते गोलों से पूरा इलाका दहल रहा है। बमबारी के साथ ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। दनादन हो रहे अटैक से पूरा इलाका तबाह हो गया है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। यूक्रेन में भारी तबाही के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर है, तो यूक्रेन का डेलीगेशन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका में मौजूद है। फ्लोरिडा के मियामी शहर में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन के डेलीगेशन से मिलेंगे। यूक्रेन को अपने हाल के मॉस्को दौरे का अपडेट देंगे। युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की शर्तें बताएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध खत्म करने की बात कही है। And we're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. 8 of them. We're looking for one more. That's Russia, Ukraine, if that's possible. And I think we'll get there. पुतिन ने अमेरिका से दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले करना होगा, तभी जंग खत्म होगी। रूस इन दोनों सूबों को हर हाल में अपना हिस्सा बनाएगा। यूक्रेन के इन दोनों राज्यों के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और रूसी सेनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका भी यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो ये दोनों सूबे रूस के सामने सरेंडर कर दे और बाकी देश को तबाह होने से बचा ले। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिलहाल इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। Будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Сьогодні я говорив з президентом Євроради Антоніо Коштою. Я дякую за готовність допомагати Україні і надалі. Ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив, контактів з партнерами.
यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा है। फिलहाल यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे उसने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है। खेरसॉन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सूमी, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के कुछ हिस्सों पर भी रूस का नियंत्रण है। डोनेट्स्क का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में रूस ने बार बार डोनबास पर कंट्रोल की अपनी इच्छा बताई है, लेकिन जेलेंस्की ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें भी तो इस बात पर टिकी हुई होंगी कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग का माहौल कब खत्म होगा, क्योंकि ये केवल रूस के लिए या यूक्रेन के लिए एक चुनौती नहीं बन गया है, ये पूरे पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन गया है और ये खतरा धीरे धीरे भारत पर भी टैरिफ वॉर के जरिए आ गया है, क्योंकि हम रूस के सच्चे मित्र हैं और जैसी भी परिस्थिति रहे भारत हमेशा पुतिन के साथ खड़ा रहा है, मोदी पुतिन के साथ खड़े रहे हैं। प्रोफेसर साहब, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के साथ हैं और शांति के साथ रहना ही भारत की नीति है, इसका असर कितना जाएगा? देखिए, तटस्थ कोई नहीं होता है, तटस्थ भी एक कैंप है। जिस तरह प्रो और एंटी है, उस तरह तटस्थता भी एक कैंप है। तो प्रधानमंत्री ने सीधा कह दिया और हमारा तो इतिहास रहा है, हम नॉन अलाइंड रहे हैं, हम कभी आइसोलेशनिस्ट या न्यूट्रल नहीं रहे हैं। और इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने भारत की वो मन की बात की थी कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, और यहां पर जब वो कहते हैं तटस्थ हैं और तटस्थ नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं, इसका एक बहुत बड़ा मैसेजिंग जाता है। और आज भी आपने देखा, हम सबने देखा, राष्ट्रपति पुतिन राजघाट गए थे, वहां जो सोलेम एटमॉस्फेयर था, वहां पर राष्ट्रपति पुतिन को भी सोचना पड़ा होगा कि ये कौन व्यक्ति है जिसको हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, फूल अर्पित करने जा रहे हैं। ये व्यक्ति तो कोई बहुत महान व्यक्ति था, शांति का पक्षधर था, नॉन वायलेंस पे अहिंसा के पक्षधर थे। जी, अहिंसा के पक्षधर थे और पूरे ब्रिटिश उपनिवेशवाद को इस व्यक्ति ने लाठी के सहारे जो चलता था, आधे कपड़े पहनता था, उसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को खत्म कर दिया। यानी शांति ही किसी भी देश का आधार बना है और भारत का आधार वही शांति बना है। तो ऐसे में वहां जाकर उनको ये संदेश तो जरूर मिला होगा, कहीं शांति का एक रास्ता खोलना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति, ताली एक हाथ से नहीं बजती और शांति भी बिना दूसरे पक्ष के शांति के बिना नहीं होगी। तो यूक्रेन को भी ये सोचना होगा। और मैं तो कई बार कहता हूं और समझता भी हूं कि ये जो यूक्रेन को पश्चिम एक मोहरा बना के रूस के सामने खड़ा कर दिया है। कभी मोदी से ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान आप सुन रहे थे। हम भारत को बिना रोक टोक के तेल देंगे, पुतिन ने कहा। भारत से दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। मोदी से ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत। यार पहली डेट है, चॉकलेट दूं या बुके? चॉकलेट, but not sure whether she like this. Bouquet? Rocky यार. Not getting right advice? Advice लो तो सिर्फ research backed. For free stock recommendations, download the Rise app by Motilal Oswal today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्यसि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इंडिया टीवी पर वक्त हो गया है राजधर्म का। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को नीति और सिद्धांत समझाते हैं।